हबीबा और ज़ियाद के साथ सुनो हर बात नहीं, दिल की बातें दुनिया भर की रहे वही. Speak Mix is the vibe you need with Habiba and Zad. Let your thoughts be free. यहाँ हर बात का है मजा, बातों में मिले जिंदगी का सिलसिला. Tune in now, don't miss the fix. It's time to speak it, Speak Mix. Speak Mix with Habiba and Zad. अस्सलाम वालेकुम, ओला, हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते and welcome to the 7th episode of Speak Mix. Yay! Welcome to the episode of 7 Speak Mix. जी ज़ियाद. Ma, I also have one thing to tell you. Yeah, sure, go ahead. I love your glasses and your outfit, mashallah. Thank you, Ziyad. Welcome. Yeah, I appreciate it, Ziyad. Thank you so much. And you're the one actually who chose these glasses, remember? Oh yeah, I did. No, Ziyad. I'm kidding. Me too, Ziyad. But yeah, thank you so much, Ziyad. And I like your blue, Ziyad. Thanks. I'm the one who bought this, right? Actually, I was the one who bought this. I'm just kidding. No, I'm the one. I'm just kidding. Oh, okay. Okay. He bought it. तो ज़ियाद, before we start today's episode, सबसे पहले तो आप पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारी ईमेल्स आई हुई हैं, लॉन्ग लिस्ट ऑफ ईमेल्स एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि वेयर हैव वी बीन, कहाँ थे हम लास्ट वीक, और हमने क्या कहते हैं पाकिस्तानी मासी, हमने पाकिस्तानी मासियों की तरह छुट्टियां करना शुरू कर दी हैं. काम वालियों की तरह हम कहते हैं हम जी बाजी पहुंच जाएंगे, हम फिर आते ही नहीं है. तो ज़ियाद, where were you? I mean, you are the one who have to tell them. Go ahead, please. We didn't really take a hiatus. We just had like some busy stuff to do, some personal stuff. But you said in the trailer, do not miss out, to watch out every weekend with your family, with your blah 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 blah. But where were you last week, Ziyad? I think Ziyad already told जी we were very busy, और अभी तक थोड़ा यहाँ पे वायरल कुछ चल रहा है, तो on and off, you know, kids are getting sick, so we were getting sick and people are getting flu regardless of the flu shot. तो उसकी वजह से you know, unfortunately we could not record any episode, but हमेशा की तरह हम लोग इस वीक आपके लिए 2 एपिसोड लेके आ रहे हैं. 2 राइट? 2 ओके, 2 एपिसोड ही लेके आ 2 एपिसोड लेके आ रहे हैं, जो कि हम लोग इंशाल्लाह रिलीज कर देंगे. यू विल बी एबल टू वॉच इट ऑन मंडे. और प्रॉमिस नेक्स्ट वीक से ज़ियाद, क्या नेक्स्ट वीक आप हर एपिसोड करेंगे या आप फिर लोगों को चकमा दे रहे हैं मासियों की तरह? नेक्स्ट वीक से हम लोग रेगुलर हो जाएंगे इंशाल्लाह, एंड विल ट्राई टू अपलोड द एपिसोड्स. और जैसे कि आप लोग हमारी एपिसोड बहुत अच्छी लग रही है, फीडबैक इज़ रियली गुड. बट जैसे मैंने कहा हमेशा की तरह, वी नीड मोर सब्सक्राइबर्स, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज कमेंट. यार कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं है. यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप जब देखे बस हमें कमेंट लाइक और बस कुछ हो जाओ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कमेंट्स एंड लाइक. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई मीन यू जस्ट कीप टॉकिंग. Yeah, they don't call me Yapper for nothing. They don't call me Mr. Yapper for nothing. Okay, Ziyad, तो आप बताइए, तो how was your week? What did you do? Did you do anything special? Well, my week was good, so Perfect. did my usual stuff. But next week, to be honest, I feel like I'm not even like cooked. I'm not even burnt. I'm literally like fried, because next week I have like 4 tests. 4 tests. Oh my god. 2 checkpoints, 2 DAs. Wow. But Ziyad, aren't you the lucky one? Because before, I think आपकी spring break आने वाली है, right? Spring break से पहले Yeah, March में, तो you'll be done by then. Week after next week we have Monday off. And then जनाब बड़ा important month आने वाला है, month of blessing. अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने वाला है. तो guys please आप लोग भी हमें दुआ में याद रखिएगा, हम लोग भी आपको दुआ में याद रखेंगे, क्योंकि रमज़ान is a month of blessing. और I don't know if we'll be able to record any episodes during Ramadan. I think हम लोग छुट्टी करेंगे, right?
और we'll see, you know, I mean, depend करता है क्योंकि the schedule is gonna be very very tough during Ramadan. And then we have to fast and stuff, Fast so- है, and then obviously, you know, Tarawih and all that. So I don't know how the schedule is It's gonna gonna be. depend. We will try to do it, and if not, then आप लोग समझ जाइएगा और फिर हम आपको blast के साथ मिलेंगे on Eid inshallah. But you never know, we just keep doing it, you know, it's just one episode in every week. So और जैसा आप लोग हमें This time we're feedback doing 2 episodes for now. यस क्योंकि हमने मिस कर दिया था तो हम लोग उसको क्या कहते हैं आप लोग को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं Each ताकि आप time we miss, we have to make 2 episodes. और स्पेशली यू नो आई मीन देयर आर फ्यू पीपल जो कि दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर शो, तो उनके लिए हम लोग कर रहे हैं। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग देखें या नहीं देखें, आप लोग क्या चीज़ अप्रिशिएट करते हैं, तो इट्स अप टू यू, यू नो। हम लोग किसी को गिरबान से पकड़ के बिठा नहीं सकते कि यार देखो देखो देखो, बट डेफिनेटली अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा, तो वी विल अप्रिशिएट दैट, यू नो, क्योंकि वी आर न्यू बीज एंड डेफिनेटली वी आर होपिंग कि हम लोग का चैनल ग्रो करे और हम लोग की फैमिली जो कि आप लोग हैं, जो कि यूट्यूब हमारी फैमिली है, तो वी ग्रो टुगेदर। क्यों ज़ियाद, मैंने सही बोला गलत बोला? टिंग 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 टिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक क्या है ज़ियाद? आज का टॉपिक कुछ बताइए, क्या है? कुछ मज़े का करके बताइए कि क्या है आज का टॉपिक, क्या है आज का टॉपिक? वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं Dramas. आज का टॉपिक बाकी इन्होंने बता, नहीं ये तो पुराना हो Just गया। kidding. आज का टॉपिक जो है लास्ट I was वीक हम thinking लोगों like ने you in the past episode. आज अच्छा तो लास्ट वीक हम लोगों ने जो एपिसोड की थी वो की थी, आप मेरी कॉपी कर रहे हैं? No? लास्ट वीक हम लोगों ने एपिसोड की थी मूवीज, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और हमने उसको 2 एपिसोड में बनाया था। सिमिलर हम लोग इसको भी 2 एपिसोड में करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग हमारे रिकमेंडेड ड्रामास हैं और जो कि हम पसंद करते हैं वो ड्रामास हम लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आई एम श्योर यू विल लाइक हमारी लिस्ट जो हमने ड्रामास को निकाला है, जो पूरा झंझोर जूस निकाल के हमने आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आई होप यू विल लाइक इट। और डेफिनेटली हम द बेस्ट ड्रामास और द वर्स्ट ड्रामास भी बताएंगे, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, आई वुड लाइक टू से एंड में बताने ये बात या कल के एपिसोड में आप बताएंगे? I feel जो like हमने सरप्राइज वाली बात बतानी थी। next episode because it's a surprise. नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ ऐसा मजे का मसालेदार लेने जा रहे हैं। Didn't I just say we would do it in the next episode? That's what I'm saying. ऐसा मसाला लेके आ रहे हैं जो कि नेक्स्ट वीक होगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ही स्पेशल किया और हमारे साथ बहुत स्पेशल चीजें हुई हैं एंड we can wait to share that with you and we can wait to show that to you on your screens. And since it's a surprise. What was that, Ziad? And since it's a वो मुझे वो कार्टून याद आ गया। कौन सा कार्टून है? डेफी डक, राइट? no. अच्छा चलें, आप मूव ऑन करें यार। बट आई लाइक योर ब्लूज यार, आई मीन यू लुक सो स्मार्ट। Yeah, he said that already. Yeah, thanks. But what I was Okay. saying was that like अच्छा, सेट दैट ऑलरेडी क्या मतलब है आपका? आपको तारीफ पसंद नहीं आ रही कि आपकी तारीफ की जा रही है? एक तो आपकी तारीफ करें और आपको पसंद नहीं आ रही है। so like since it's a like surprise, we cannot give you any hints. वो तो हो गया ना, कहानी खत्म हो गई। चलें लेट्स मूव ऑन। तो लेट्स स्टार्ट हमारी एपिसोड, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास जो है। हम लोग स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हमारे लिए थोड़ी सी तालियां बजा दी जाए। कमान किया बेटा, तालियां बजानी है, मच्छर तो मारने नहीं है। It did. नहीं बेटा, आप मच्छर मार रहे It's हैं। not like it's not like making मच्छर noise नहीं or मारने। something. तो पहले ड्रामा जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज, हम लोग हर ड्रामे से पहले उसका टाइटल ट्रैक का थोड़ा सा हम आपको एक्ट करके दिखाएंगे और थोड़ा सा सिंग भी करेंगे। जो हमारी आवाज़ अच्छी है बुरी है जो भी, आई डोंट केयर, वी जस्ट डू इट। सो पहला ड्रामा आप लोग गेस करिए कौन सा है। तो हियर वी गो। से है कहाँ दूरता है गम, हर जड़ी फरियाद की समझता है जुबान,
ये तूने सहारा हमने भी पुकारा सेट परवरदिगारा परवरदिगारा जी हाँ जनाब, आपने सही गेस किया। नहीं कैसे जियाद, कौन सा ड्रामा था ये? जी गाइस, ये ड्रामा था खई ड्रामा था। और खई ड्रामे के बारे में ज़्यादा आप क्या बताना चाहेंगे? कौन से ईयर में आया था? व्हेन डिड यू वॉच इट एंड क्या है इसके बारे में बताइए। बेसिकली सबसे पहले तो ये थ्रिलर और सस्पेंस ड्रामा है एंड आई वुड से इट्स अ मस्ट वॉच। सो पहले जियाद अपना फीडबैक देंगे, उसके बाद मैं अपना करूंगी। तो जियाद, ओवर टू यू बेब। So anywho, the year was released was like around like late 2023 or at the beginning of 2024. So and then बोलिए, आपका फीडबैक है पहले, मेरा तो अभी है भी नहीं। Yeah, it was released in like like late 2023 or beginning of 2024, and I first watched it like when the first episode came out. When the first ever episode came out. Right. So you decided to watch it, so I decided to sit with you to watch it, and that was when I became a fan of the show. Actually, the storyline, you know, I mean, इस ड्रामे का बहुत ही ज़्यादा hype था. You know, I've been like watching अब्दुल्ला कादवानी, उनका ड्रामा है. So I've been watching the trailer. So I was just, you know, मुझे थोड़ा सा interesting लगा, especially you know being the cast. Cast इसकी टॉप नॉच है। सबसे पहले तो कास्ट में हमारे पास जो है वो आती हैं दुर्रे फिशा, जो कि ज़ियाद की फेवरेट है। दुर्रे फिशा एज जमदा। फिर हमारे पास, पहले मैं बता रही हूँ, फिर हमारे पास फैसल कुरैशी हैं जो कि है चन्नर खाना। और हमारे पास खालिद भट्ट साहब, जिनकी अल्लाह मग़फ़िरत करे। सून आफ्टर द ड्रामा ही एक्चुअली वी गॉट द न्यूज़ दैट ही पास्ड अवे। सो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत नसीब करे। और ही वाज दुर्राब खान जनाब। देन वी हैव उसामा ताहिर इन द कास्ट एज बादल। और हमारे पास He was the one in Mushk, wasn't he? No. He was not in Mushk. And then we have beautiful, gorgeous Mahinur Heather as Apana. और फिर हमारे पास very talented, new, very nice looking handsome boy, which is Shuja Asad as बरलास। फिर हमारे पास नबील जुबैरी हैं एज पामीर। और हमारे पास शामिल खान हैं एज गुलाब खान। और हमारे पास इसमें और भी हैं, लैला वास्ती हैं, हमारे पास हिना ख्वाजा बयात हैं। तो कास्ट सुनकर ही आई वाज लाइक वेरी मुझे हो रहा था यार इस ड्रामे का वाकई में हाइप है। और जो नॉर्दर्न एरियाज में उनको शूट किया है तो दैट वाज अमेजिंग। उसी के बेसिस पे आई स्टार्टेड वॉचिंग। जब भी कोई ड्रामा मैं स्टार्ट करती हूँ आई ऑलवेज वॉच द फर्स्ट एपिसोड एंड देन उसी की बेसिस पे आई डिसाइड वेदर आई हैव टू कंटिन्यू वॉचिंग दिस ड्रामा। क्योंकि अव्वल पे तो मैं इतने देखती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं देखती हूँ तो आई ऑलवेज वॉच द फर्स्ट एपिसोड एंड दैट एपिसोड एक्चुअली गिव मी द डिसीजन, जो मैं रिजल्ट दे देता है कि इसको आगे लेके चलना है या बस दैट्स इट। तो दिस वॉज द एज सून एज, तो सरप्राइजिंगली उस टाइम पे ये लोग भी आए थे। आई वॉज वॉचिंग इट एंड देन दे स्टार्टेड, यू नो, दे एक्चुअली जॉइन मी वॉचिंग खाई एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। एंड ज़ियाद हमारे साथ स्टोरी प्लॉट रिवील करेंगे। तो क्या ज़ियाद, क्या है इसका स्टोरी प्लॉट? पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगी। But basically, like, what it's about is just basically, like, about, like, revenge and then, like, reign of terror and then, like, the blurred lines of, like, good and evil. Like, just, so basically it revolves the story around, like, male members of, like, an enemy family. Yeah. They're, like, continuing this ancient tradition of, like, kai. Right. But, like, they're being prevented from doing it because of, like, one girl named Zamda. Yeah. Since her, like, parents got killed. Yeah. By one of them. So she decided to revenge on them, to do kai on them. जी हाँ ज़ियाद, बिल्कुल आपके लिए, kai on her. आपके लिए एक्चुअली मैं ये करना चाहूँगी कि ज़ियाद ने बहुत अच्छे समी प्लॉट बताया, रियली अमेजिंग। Warning, it has some इसमें डेफिनेटली सम वायलेंस नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस।
बट डेफिनेटली ये टिपिकल जो है जिसको आप बोलें कि इट्स बेसिकली अबाउट अ फैमिली जो कि रिवेंज, जैसे ज़ियाद ने बताया, देयर आर टू फैमिलीज एक्चुअली, टू फैमिलीज हैं, और हम जो एक फैमिली है दैट इज़ एक्चुअली रन बाय अ वेरी पावरफुल मैन विच इज़ फैसल कुरैशी एज चनार खान, और जो कि डिटर्मिन्ड है, हाँ बिल्कुल, और जो हमारे साथ दुराब खान है, दे आर एक्चुअली डिटर्मिन्ड कि वो अपनी दूसरी जो फैमिली है उसके साथ रिवेंज कह रही हूँ, रिवेंज ले सके, रिवेंज ले सके, बदला ले सके अपने बेटे की डेथ का। और बीच में इनका आपस में थोड़ा सा सॉर्ट आउट भी करने का होता है मामला। दूसरी जो फैमिली है दुरे फिशा की फैमिली, जिसके जो अब्बू बने हुए हैं एक्चुअली दैट इज़ नूरुल हसन, वन ऑफ माई फेवरेट एंड अ वेरी सीनियर आर्टिस्ट नूरुल हसन, एंड आई जस्ट लव हिम, यू नो, ही इज़ रियली रियली गुड। अगर मुझे फादर फिगर्स में कोई लोग पसंद हैं और जिनकी एक्टिंग वेरी नेचुरल मुझे अच्छी लगती है, दैट इज़ यू नो हिम, नूरुल हसन साहब। You know, this is for you, sir. You are amazing. We love you, and just keep doing whatever you are doing. And including my son, we are a huge fan. And just keep doing whatever you are doing, and you are amazing. तो इसमें जो है फैसल कुरैशी जो हैं वो हर हाल में चनार खान इज़ ट्राइंग टू गेट रिवेंज, किसी भी तरह से उन्होंने बदला लेना है, चाहे इसमें इनोसेंट पीपल भी मारे जाएं, मासूम जितने इसमें काफ़ी इनोसेंट लोग भी मारे गए हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू इट। सो ये इस ड्रामे में बेसिकली दिस फोकस इज़ ऑन रिवेंज, बदला कैसे लेना है, देन माफ़ी भी इसमें है, और उसके बाद फैमिली लॉयल्टी के बारे में इसके सारे हैं। बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ की दो फैमिलीज़ हैं जो कि एनिमीज़ हैं, यू नो, फ्रॉम जनरेशन्स, ठीक है, और उन्होंने ये बेसिकली ड्रामा इसके बारे में है। तो ज़्यादा क्या ड्रामा स्टार्ट होता है, व्हाट हैपन्स टू जमदा। तो बेसिकली जो जमदा जी हैं हमारे पास दुरे फिशा, So basically, it just starts with शी इज़ द वन हु एक्चुअली जिसको सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं। एपिसोड्स टोटल आई थिंक 25 to 30 एपिसोड्स हैं टोटल। 25. I think 20 No, 28 or 9. 28 और 29 एपिसोड्स हैं। बेसिकली एंड में आगे थोड़ा सा इन्होंने ड्रैग किया, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा इन्होंने ले लिया, एंड में आगे थोड़ा सा ड्रैग किया, लेकिन इस ड्रामे में जो स्टोरी प्लॉट, जो कास्ट है, जो डायलॉग्स हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो आपको इतना इंगेजिंग हैं कि आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप स्क्रीन से, यू विल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड कि आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो। और इन्होंने एंड में आके इतनी पूरे वीक में एपिसोड्स लगाना शुरू कर दी थी खाई की कि वी वर लाइक एवरी डे हम लोग इतना एंगेज हो गए थे कि हम लोग डेली खाना खा के हम लोग कहते थे बैठ जाओ और खाई की एपिसोड होने वाली है, मतलब इतना अच्छा। एक्टिंग वाइज आई वुड गिव चनार खान, फैसल कुरैशी, एवरीबडी 10 on 10, everybody 10 on 10, right Ziyad? We know it would be better. Yeah. 12 out of 10. 12 out of 10। ज़ियाद ने 12 out of 10 दी, मैंने 10 out of 10 दिए। सब लोग अमेजिंग है। इसमें एक न्यू हमने फेस देखा था जिनका नाम डोडी खान है, जिनकी आजकल बड़ी चर्चे हो रहे हैं कि जी वो राखी सावंत से शादी करने जा रहे हैं। Oh yeah, him. या डोडी खान, और उनके चर्चे हो रहे हैं कि आजकल वो शादी करने जा रहे हैं जी राखी सावंत से। तो जी गुड लक अगर आप शादी करें जी राखी जी से, और विश यू अ ब्लेस्ड लाइफ एंड गुड लक टू यू। और उसके अलावा जो है हमारे पास डोडी खान के अलावा उसामा ताहिर वाज नॉट बैड, एंड उसामा ताहिर जो है एक्चुअली आई फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि वो उसामा ईट्स के नाम से एक शो करते हैं, एंड ही इज़ अ रियली गुड कुक, एंड बेसिकली ही इज़ फ्रॉम टोरंटो। Yeah, he's from Toronto. He's from Toronto, Canada, and he's really good, you know. Acting भी अच्छी करते हैं, cooking में तो मास्टर हैं वो, और स्पेशली जैसे वो करते हैं इंस्टाग्राम पे अपने चैनल को रन कर रहे हैं। I'm a huge fan of उसामा। और फैसल कुरैशी तो आपको पता है हमारी इंडस्ट्री के टॉप नॉच एक्टर हैं, उनके बारे में तो क्या ही तारीफ करें। My favorite character would be Barlas. Barlas. Shuja Asad. ड्रामा जो एंड में जो चला है वो बेसिकली शुजा असद और अपाना की वजह से चला है। इवन में माहिनूर हैदर को भी आई नेवर न्यू हर बिफोर, एंड आई थिंक आई नेवर लाइक्ड हर बिफोर, बट आफ्टर वॉचिंग दिस उसकी एक्टिंग जो है, एक्टिंग स्किल्स आर रियली रियली गुड। उसको थोड़ी सी पॉलिशिंग की ज़रूरत थी जो कि इस ड्रामे में उन्होंने किया, और वो सामने आ गया। और फिर जमदा साहिबा एंड अप हो जाती हैं मैरिंग फैसल कुरैशी, क्योंकि फैसल कुरैशी को वो पसंद आ जाती हैं चनार खान को। Faisal Qureshi, he wanted a third wife. थर्ड वाइफ, उनकी पहले दो बीमियां हैं, And then एक he, लैला वास्ती हैं और एक दूसरी हैं Zamda never wanted to उज़मा marry him. उज़मा हसन एक उनकी वाइफ हैं, एंड उज़मा हसन इज़ अमेजिंग, शी इज़ सच अ ग्रेट एक्ट्रेस, यू नो, आई जस्ट लव हर टू। और लैला वास्ती को भी कौन नहीं जानता, यू नो, उनके पेरेंट्स, उनके तो जीन्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं एक्टिंग की, तो ऑब्वियसली।
तो उनको होता है कि जी जमदा से शादी करनी है, और ऑब्वियसली देयर इज़ अ एज डिफरेंस, एंड जमदा जो है वो बेसिकली बादल खान जो कि उसामा ताहिर है उनको पसंद करती हैं, लेकिन व्हाट एंड अप चिनार खान डूइंग इज़ यू नो ही एंडेड अप किलिंग द होल फैमिली, पूरी फैमिली। और इसमें सबा साहिबा भी हैं जो कि इनकी मदर बनी हुई हैं, जो कि इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, उनका ऐसी है। Yes. It was basically like a genocide or massacre what he did. Yes. He basically killed the whole family because there was right. So it showed this one clip of like a flashback in which like I think it was her family that killed one of their family members. So that was why they wanted to take that back and just take revenge by doing a massacre or genocide to everyone. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एंड अप हो जाता है उनके साथ फोर्सफुली वो मैरिज कर लेते हैं, और रिगार्डलेस यू नो शी इज़ नॉट हैप्पी विद हिम, अंदर ही अंदर शी इज़ यू नो कंस्पिरेसी चल रही है विद बादल खान, यू नो ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प हर आउट ताकि वो बाहर आ जाती है, दे कैन गेट मैरिड, एंड देन शी इज़ यू नो शी वॉन्ट्स टू टेक द रिवेंज, और वो एक एक करके यू नो मरवाने की कोशिश करती है, या खाई ऑन देम, वो उनके ऊपर अप्लाई करती है, वो कामयाब भी हो जाती है। और थ्रू आउट बेसिकली इट्स यू नो टाइप ऑफ अ थ्रिलर सस्पेंस काइंड ऑफ ड्रामा। शामिल खान ने इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। शामिल खान के लिए प्लीज़ पूरी टीम के लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज जो उन्होंने किया है, और ड्रामों में नो डाउट पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज ऑन टॉप, और उनको कोई हरा नहीं सकता हमारी पाकिस्तान की टीम को। So, anything else you want to talk about? So, you think if people should watch Khai, regardless it's an old drama? You think they should watch it? Well, I wouldn't consider it as an old drama. Like, it was just like 1 or 2 years ago, but I would consider that as kind of old. But like, I would prefer watching it because it's good, and then even its OST is actually good. या OSTs जो हैं वो सारे बड़े आजकल उन पे बहुत फोकस किया जा रहा है, क्योंकि उसी की बेसिस पे सबसे पहले तो वही ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है, एटलीस्ट मुझे तो अट्रैक्ट वही करती है। अगर सॉन्ग अच्छा होता है देन उसमें क्लिपिंग चलती है तो यू फील लाइक यू नो यार ये ड्रामा क्या ज़बरदस्त है, और फिर वो आपके फेवरेट सिंगर से गवाते हैं। और जैसे खाई का जो टाइटल OST है वो ज़ेब बंगश ने गाया है, एंड बहुत ही डिफरेंट ट्रैक है। इट्स लाइक अ स्लो ट्रैक बट डेफिनेटली यू नो इट्स वेरी सूदिंग, और आप सुनना चाहेंगे उसको, यू नो गाड़ी में स्पेशली प्ले करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट तो दैट्स इट जी। ऑलराइट जनाब, तो हमने उसको 10 on 10 दिया, ज़ियाद ने उसको 12 out of 10 दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड ड्रामा, और सेकंड ड्रामा जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल ट्रैक प्ले करेंगे, थोड़ा सा ज़ियाद उसको गुनगुनाएंगे, और उसके बाद उस ड्रामे के बारे में ज़ियाद ही स्टार्टअप लेंगे और ज़ियाद ही उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बीच में थोड़ा सा अपना आउटपुट दूंगी क्योंकि दैट ड्रामा इज़ ज़ियाद फेवरेट और ज़ियाद रिमेंबर्स इट, एंड देन उसके साथ हम लोग और भी थोड़ी सी आपको मेमोरीज बता सकते हैं। सो हियर वी गो, the next drama. Before we move on to the name of the drama, let's play the title track and sing some of the song. Ready, Ziyad? Okay. ये आप ही को गाना है। या तारा नाम न सहारा लग से मैं तेरा दोबारा। मुझे डांस का बहुत शौक है। इश्क ना गया, हाँ जी yeah, keep singing. Keep singing, yeah, it's okay. हाँ जी, मुश्क मुश्क मुश्क। ओके जी, तो फिर चलता रहेगा क्योंकि ज़ियाद इज अ रियली गुड सिंगर। और तो ड्रामे का नाम OST में आ चुका है। Wait until one day I sing "Enjoy the Silence" by Deepak Mode. Okay. That's a good song. Okay. But it's a bit off topic. Okay. तो जनाब OST में ऑलरेडी आपने गेस कर लिया होगा, तो ड्रामे का नाम है मुश्किल। मुश्क। तो ज़ियाद ओवर टू यू। मुश्क की कास्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, एंड उसके बाद ज़ियाद लेके चलेंगे। ज़ियाद पीछे बढ़िए।
मुश में कास्ट हमारे पास है, उड़वा है हमारे पास, और हमारे पास इमरान अशरफ दी ग्रेट है हमारे पास। और कौन है? दोनों मेन हमारे पास कैरेक्टर्स इमरान अशरफ और उड़वा है। और ज़ियाद आप बताइए प्लीज उसके बारे में, आपने लिखा भी है और आप देख सकते हैं अपने नोट्स, इट डजंट हर्ट ज़ियाद, कोई बात नहीं। तो स्टोरी लाइन में क्या है ज़ियाद, और आप क्यों रिकमेंड करेंगे ड्रामा देखना मुश्किल के? और ये तो काफी पुराना ड्रामा नहीं है? Well, it's like a 2020 drama. It's pretty old, but like it's like a classic though. Right. तो जी जरा ये बताइए जरा इसके बारे में, हमें कास्ट के बारे में बताइए थोड़ी सी। I remember seeing this drama like when COVID first hit. Yeah. Because 2020 was when we were in lockdown. So this was one of the dramas I think that got me started into watching them. So. तो मुश्क बेसिकली एहसन तालिश जो हमारे हैं डायरेक्टर, उन्होंने बनाया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास इमरान अशरफ हैं, इसमें भी उसामा ताहिर हैं। From Kite, I was right. Yeah, you were right. It's Why okay. are you saying I was wrong? I have a memory loss. It's okay. उसके अलावा हमारे पास एहसन तालिश के बहुत ही हैंडसम बेटे हैं, रजा तालिश। Actually, he's a really good actor. You know, he was in जाने जहाँ as well, and he was the younger brother of हमजा अली। उसके बारे में भी बात करेंगे, वो भी हमारी लिस्ट में एक ड्रामा है। उड़वा है हमारे पास एज गुड्डी, और हमारे पास मोमल शेख हैं जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, काम चलेगा। देन उसमें मुझे पता ही नहीं कि उसमें सहर खान भी थी, जो कि सहर खान आजकल बहुत टॉप पे जा रही हैं, और बाकी में शी इज़ वेरी गूफी टाइप की, बड़ी मजे की एक्ट्रेस है वो। और वी हैव ज़ारा तरीन, वी हैव सोहेल समीर, नताशा अली, राजा हैदर, समी खान, हसन अहमद हैं, और अबीबा अली हमदानी हमारे पास कास्ट में मौजूद हैं। तो मूव ऑन टू, आई नो ज़ियाद, लेकिन हमें क्या पता उसके बारे में। लेकिन इमरान अशरफ के बारे में ज़ियाद बताइए। इमरान अशरफ, डू यू लाइक इमरान अशरफ? Yes, I even met him. रियली? जी हाँ। वाओ ज़ियाद, आप मतलब आप तो स्टार हैं यार। I mean, that was the first time I've ever met a Pakistani actor. This was back in 2022 when the Mustam was the Mustam cast were actually in Dallas, and Ziad was able to meet them and backstage. Yep, backstage. He met Amar Khan. He met. We will try to show some pictures. Not sure, but we will try if we have them. But Ziad met Imran Ashraf, Amar Khan he met, and then he also met Adnan Siddiqui. The director, I believe. No. Adnan Siddiqui. Yeah, I think Adnan Siddiqui is the director, but yeah. So we met all of them, and it was really nice meeting them. They were so humble. कोई उनके अंदर अकड़ नहीं थी, कोई सेलिब्रिटी वाली बात नहीं थी। Especially अमर खान के अंदर भी और इमरान अशरफ दोनों के अंदर, they were very very nice. और ज़ियाद को तो उन्होंने बहुत प्यार किया। और they actually wanted to cast ज़ियाद, right? ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया यार। अभी मत कीजिएगा क्रैप, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सफाई का। लेकिन येस, इट वाज वेरी अच्छा, मज़ा आया था हम लोगों को। शो एक्चुअली हमारे वहीं था, तो हम लोग गए थे और दे वर ऑल देयर, एंड इट वाज यू नो वेरी इंटरेस्टिंग, मज़े का इवेंट था, मज़ा आया था हम लोग को। जस्ट फॉर फन हम लोग भी, हमने कहा चलो लेट्स सी क्या है। तो वी विल ट्राई, अगर हमारे पिक्चर्स हैं ज़ियाद की विद इमरान अशरफ, तो वी विल ट्राई टू शो इट टू यू गाइस। We will see. I'm not sure. But Zia, let's move on to the storyline. क्या storyline? It starts with like a girl, Mehak, who's born in a. Mehak नहीं है, महक होता है Zia. Okay, sorry. Okay. Okay. I'm literally half American, half Pakistani. Okay, what do you expect? And she's like born in a conventional family, so like she gets like a chance to go abroad for further education. That doesn't really change the conventional thinking of her family, and she wants to get married when she the conventional think of her family, and her family wants her to get married as soon as she gets back, basically. Right. Yeah. So basically, it's a multi-layer story. Basically it explores the concept of love. That's what it does. Yes. और बेसिकली महक जो हैं वो बाहर से आई हैं, उनके साथ एक बच्ची भी है, और जो कि रिवील करे जा रही है कि उनकी एक हिडन मैरिज हुई हुई है, ठीक है। और वो उनका पास उनको हॉन्ट करता रहता है, एंड जो शयान है हस्बैंड उनके, या तो जो उनके शयान हस्बैंड है, एक्चुअली ही इज कॉट अप बिटवीन द सिचुएशन ऑफ हिज लव फॉर महक, एंड देन ऑन द साइड फैमिली एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। और तो उसके बाद जो इमरान अशरफ हैं, जो जिनका नाम क्या है इस ड्रामे में ज़्यादा, आहत, I think Adam. Adam? No. According to my calculations, yeah, Adam. Adam जो है वो उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, एक्चुअली ही इज इन डीपली लव विद उड़वा।
उर्वा के साथ, और बेसिकली वो बहुत ही इंटरेस्टेड है उर्वा के अंदर। ज़ियाद, आप बताइए, आपने ड्रामा चूज़ किया, मुझे क्यों फंसा रहे हैं? वाई डू यू लाइक इट? आई मीन व्हाट्स द मैसेज इन दिस ड्रामा? क्योंकि हर ड्रामे में मैसेज है। इस ड्रामे में क्या मैसेज है? इस ड्रामे में बेसिकली आपको बताऊं, बेसिकली इनका जो हर कैरेक्टर का एक पास्ट है, ठीक है। इमरान अशरफ का भी कैरेक्टर का एक पास्ट है, और उनके पास ये लॉर्ड मतलब इनके जो है वो जिनको कह रहे हैं जद्दी पुश्ती टाइप लोग हैं, इनके पास ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, यू नो, गांव की ये स्टोरी है, ऑल दीज थिंग। इनके घर में एक टिपिकल दादा अबू जी रहते हैं, और ये सारी स्टोरी लाइन। ज़्यादा आप बताइए, आप ज़्यादा अच्छा मुश्क के बारे में बताइए, प्लीज़ गो हेड एंड टेल इट। Basically, so, about what again? ज़ियाद ने तैयारी नहीं की है और मुश्क ड्रामा चूज कर लिया है। ज़ियाद, आप फंस गए। Okay, look, I just came back. I just came back from all the stuff at school. Okay, so my mind is a bit. But I know, but you said you were gonna talk about mushk, so now tell people why people should watch mushk. I would recommend it. It's because of like how the storyline. हाँ जी। Okay, go ahead, यार। चलो। It's basically like because of like the storyline, the acting, and then the Ost. It's also like an old drama to like go back to, especially with the Let me help ज़ियाद। ज़ियाद ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये हम पूरी स्टोरी आपको सारी एपिसोड नहीं बता सकते हैं। ऑब्वियसली इस ड्रामे का मकसद जो है कौन कौन सी थीम्स को कवर कर रहे हैं। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कवर द थीम ऑफ लव, बिट्रेयल, फैमिली एंड सोशल प्रेशर्स, कितने ज़्यादा, ठीक है। और बेसिकली हाईलाइट किया जा रहा है इसमें यू नो क्लैश बिटवीन द मॉडर्न फैमिलीज, मॉडर्न वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स को कैसे कैरी करना है, कैसे लेके चलना है, यू नो, इस तरह की जद्दी पुश्ती सेटिंग में, ठीक है। और जैसे जैसे स्टोरी आप देखेंगे, अब स्टोरी आपको बता देगी, फिर आप ड्रामा क्यों देखेंगे, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देंगे, भाई इट्स अ मस्ट वॉच, जाके देख लीजिएगा। नहीं देखना तो नहीं देखें, देखना तो देख लें, और फिर आप बोले अरे उन दोनों ने बताया था हमने देखा, अरे उन दोनों ने बताया था हमने देखा, ओ राइट, इसीलिए, ठीक है। और फिर जैसे जैसे ड्रामा बढ़ता जाएगा तो आपको गुड्डी की असलियत भी पता चल जाएगी, आपको एडम की असलियत भी पता चल जाएगी, और एंड अप में वही होगा जी, एडम वहीद नहीं, एंड में उनकी आपको जो है पता चल जाएगी। और फिर कुछ गुड्डी बेसिकली जो है वो गुड्डी इज मोमल शेख, गुड्डी इज मोमल शेख, राइट यार? Yeah, her, the lady. यस। और गुड्डी इज द नौकरानी होगी ना, गुड्डी घर में काम करती होगी। और जो मोहम्मद शेख है वो महक है, ठीक है। ज्यादा आपने तो उल्टी स्टोरी बता दी है। एनी हाउस ओवरऑल जो इमरान अशरफ है, I tried researching the best I can. What do you expect? It's all of Google's fault. It's all your fault, Google. तो मुश्क हो गया, Offense. मुश्क ड्रामा हो गया है। मुश्क के बारे में ज्यादा और आप बताइए, आपका फेवरेट सीन कौन सा था, क्योंकि आप एक सीन रिवाइंड करके देखते थे। I don't remember any scene from the drama because it was 5 years ago. But my favorite character would probably be Imran Ashraf, in which he plays Adam. Yeah. Or Adam, however you pronounce it. So. जी बिल्कुल, ज़ियाद ने सही बताया। और अब हम नेक्स्ट ड्रामे की तरफ चलते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है, और पर्सनली उस ड्रामे को मैं काफ़ी रीजंस की वजह से आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, जो कि आप लोग भी एंड में कहेंगे या बिल्कुल सही करेंगे। तो लेट्स प्ले द टाइटल ट्रैक। एनी गेसेस गाइस? कम ऑन लेट्स ज़ियाद। I don't even know this. तेरे नाल प्यार होया, दिल पे करार होया, तेरे नाल प्यार होया, दिल पे करार होया, तेरे नाल प्यार निभावण मैं आना है सजना, मैं सजना, मैं टूटवाना सजना, मैं सजना डोरी मार के मैं आना है सजना वे सजना। मैं टूटवाना वे सजना, वे सजना, डोरी मार के मैं आना है। जी हाँ, आपको गाने से ही पता चल गया होगा। द टाइटल ट्रैक जिन्होंने गाया है, शी इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट्स, दैट इज़ हदीका कियानी जी। हदीका कियानी आपके लिए है क्योंकि बहुत ही अच्छी हैं।
हदीका कैन इज अ वेरी गुड सिंगर ऑफ पाकिस्तान और आजकल वो लायनल रिची के साथ उनके रेजिडेंस पे बड़े Hello? मौजा करी. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. What the heck was that? You said you can see in my eyes. You can see her in my eyes. That's what you meant. No, not Hadiqa no, Kiani it's too- with Lionel Richie. Okay, you can continue, Ziad. You can sing it. I don't know all the other lyrics. I just only know that part. तो ड्रामे का नाम है जी नन अदर देन उदाड़ी 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 उदाड़ी. बहुत ही फेवरेट ड्रामा है. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा. I've never इसकी seen it, but I. can बट tell आपको it मैं is. जब बताऊंगी इसकी स्टोरी प्लॉट वगैरह यूल बी लाइक यार मुझे तो देखना ही है. ठीक है. इसकी प्लॉट में कास्ट में है वेरी सीनियर आर्टिस्ट वन ऑफ माई फेवरेट. शी वॉज एक्चुअली इन सदके तुम्हारे एज अ मदर ज़्यादा काम करती हैं. सामिया मुमताज़ जी एज सज्जो. बुशरा अंसारी वन ऑफ द टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री. शी इज़ सच अ लेजेंड, वेरी टैलेंटेड एंड मिमिक्री बहुत अच्छी करती हैं. एवरीबडी नोज हर. शी इज़ एज शीदा. एहसन खान हमारे पास हैं. इम्तियाज पाजी ना तो उड़वा हैं एज मीरा. और फरहान सिंगर हमारे पास हैं एज तैमूर. और हमारे पास इसमें जो बच्ची कास्ट की गई हैं चाइल्डहुड दैट इज़ ज़ेबू निसा जिनको ज़ेबू के कहा जाता है. और फिर वो थोड़ी सी बड़ी होंगी तो हिना अल्ताफ़ ने उसको कैरी ऑन किया. तो ज़्यादा आप कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि मॉम क्या स्टोरी है या मैं What खुद ही is बकबक करती हूँ. basically the story? Because सो I've never बेसिकली seen ये this. ड्रामा जो हाईलाइट करता है जो मुझे इसमें चीज़ अच्छी लगी ये ड्रामा बेसिकली ऐसे ऐसे इश्यूज को इस ड्रामा में हाईलाइट किया जाए. दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास और बहुत हिट हुआ था ये ड्रामा. इट वाज अ ब्लॉकबस्टर ड्रामा. बहुत पसंद आया था. एक्चुअली दिस इज़ द वन हु एक्चुअली चेंज द पूरा ड्रामा इंडस्ट्री को जिसने दूसरी तरफ और थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री ओपन अप हुई थी. हम टीवी का ये ड्रामा था. इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बताया गया है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कशन की गई है. और जो भी इकोनॉमिक स्ट्रगल्स रूरल औरतें फेस करती हैं गांव में और सिटी में मॉडर्न एरिया में क्या फेस करती हैं. और ये बेसिकली विलेज की लाइफ को हाईलाइट करता है. और इसमें दो फैमिलीज़ हैं बेसिकली जो कि एक विलेज में रहती हैं. और एक फैमिली जो है बेसिकली उनको म्यूज़िक का शौक़ है लेकिन चूँकि वो विलेज में रहते हैं तो सरकमस्टेंसेस इस तरह के होते हैं कि म्यूज़िक को आपको पता है अच्छा नहीं समझा जाता है. तो दे कैन नॉट परस्यू देयर ड्रीम. उनकी एक बेटी है जिसका नाम है जो कि मावरा है और वो उनका ड्रीम होता है टू परस्यू हर करियर म्यूज़िक में. और उनकी स्ट्रगल्स ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि हाउ शी ओवरकम्स दीज चैलेंजेस एंड यू नो फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में भी इस ड्रामे में बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है. और जो बच्ची हैं ज़ेबो ड्रामा उस वक्त यू टर्न लेता है जब बच्ची की जो माँ होती है सामिया मुमताज़ एसज वो विडो होती हैं और वो प्लान करती हैं रीमैरी करने का. तो वो अपने कज़न से शादी करती हैं जो कि एहसन खान है इम्तियाज़ पाजी. और इम्तियाज़ पाजी एज अ स्टेप फादर वो फ़ायदा उठाते हैं नौमालूद माइनर बच्ची का. और वो मौका देखते हैं उस बच्ची के साथ चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं. सेक्शुअल अब्यूज़ किया जाता है उस बच्ची के Are you साथ. serious? Yes. What am I hearing right now? Yes, that's Gotta what get you. out of That's here. what no, that's what you hear at school, and that's what they are teaching you at school about Well, bad touch that's and not about really- bad touch and good touch. That's what child abuse is, and That's what they did for the Wogas. yeah, and that's what we're gonna talk about in future episodes as well Basically. about child abuse ताकि बच्चों को इसकी awareness आए. And your age, you should also know these things. I know these. So अभी तो आप कह रहे हैं I should leave. Why should leave? Because it So- kind of bothers me what it is. बॉर्डर्स की बात नहीं है. आई मीन एवरी किड शुड नो अबाउट दिस. और आजकल I तो know, स्कूल में but ही like- इसके बारे में तालीम दिया जा रहा है. I know, but it's kind of depressing to talk about though. डिप्रेसिंग है बट इट्स अ ड्रामा जिसमें मैसेज दिया गया है कि आप Yeah, किस no. तरह से चाइल्ड अवेयरनेस फैला सकते हैं. किस तरह आप बच्चों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट अब्यूज़. किस तरह के अब्यूज़ भी डिफरेंट तरह के होते हैं Yeah, I बट know. इसमें खास फोकस सेक्सुअल अब्यूज़ पे किया गया है कि किस तरह से उस बच्ची के साथ होता है. और फिर वो पकड़ा भी जाता है और फिर उसको जो है पनिशमेंट भी मिलती है. लेकिन चूंकि बच्ची को अवेयर नहीं होता और वो स्टेप फादर को भी फादर ही समझती है तो बेसिकली इसमें स्टोरीज रिलेशनशिप के हाईलाइट भी की गई है कि रिलेशनशिप आपस में कैसे होने चाहिए. और फिर इसमें आपके पास दो फैमिलीज होती हैं. एक शीदा फैमिली और एक साजदा फैमिली है. जो शीदा फैमिली है जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी बेटी मीरा इज़ वेरी एम्बिशियस एंड शी वांट्स टू परस्यू हर ड्रीम एंड म्यूज़िक.
और वो आगे चल के फरहान सईद से मिलेंगी और फरहान सईद जो है It feels like a biopic or something, like the drama, because like you know, like some biopics, it shows like certain people like pursuing their dreams. Is it like based on a true story? No, it's not. It's just a story. So It's not this because this you're तरह की pursuing different topics को highlight किया गया है. फिर हमारे पास साजदा फैमिली है जो कि सानिया मुमताज़ की फैमिली है, और जैसे कि मैंने बताया she is struggling to raise up her minor daughter ज़ेबू, and then वो इम्तियाज़ पाजी से शादी करके और यू टर्न ड्रामा तब लेगा जब सेक्शुअल अब्यूज़ हो जाएगा, और फिर आगे चल के ड्रामा में तो बेसिकली इसमें सेक्शुअल अब्यूज़ जो है रूट कॉज पे फोकस किया गया है, और ये भी बताया गया है कि कैसे वो बच्ची विक्टिम बनती है. हिना अल्ताफ़ इन फ्यूचर वो जो बड़ी हो जाएंगी हिना अल्ताफ़ बन जाएंगी. हिना अल्ताफ़ ने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है इसको. हिना अल्ताफ़ दिस इज़ फॉर यू, और वी रियली लाइक अप्रिशिएट योर एक्टिंग एंड वी वांट टू सी यू मोर इन द अपकमिंग ड्रामा, जो कि आप आजकल नजर ही नहीं आ रही. कहाँ हैं आप, कहाँ चली गई हैं? तो प्लीज़ कम बैक. रियली लाइक योर होस्टिंग एंड कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग इट. और गर्ल्स ओनली में भी अब आप तो है नहीं, अब डिफरेंट कोई होस्ट आ गई हैं. सो वी रियली मिस यू इन गर्ल्स ओनली. सो प्लीज़ अगर आप वापस आ सकती हैं तो ज्वाइन एंड गर्ल्स ओनली को टेक ओवर कीजिए. वो शो आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा था. वी रियली मिस यू. ठीक है. और विक्टिम ने कैसे फेस किया, ज़ेबू ने कैसे फेस किया, क्या मेंटल अफेक्ट्स आते हैं, लाइफ कैसे डिस्टर्ब होती है, यू नो, और फिर कैसे उसने सीख किया फॉर जस्टिस और जस्टिस उसको मिला नहीं मिला, ये तो आप लोग ही देख के बताएंगे. और ट्रेडिशनल इसमें डिफरेंसेस बताए गए हैं कि गांव की लाइफ कैसी होती है, फिर अर्बन वर्ल्ड में आपके मॉडर्नाइजेशन जो है उसको किस तरह से बताया गया है. तो डिफरेंट चैलेंजेस डिफरेंट विलेज में बताए गए हैं, और फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपको मौसूल होती हैं. सिटी में आके डिफरेंट है, आप स्कूलिंग कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, वो आपको पॉलिश करती है, ब्रशअप करती है, ये सारी चीज़ें. तो बेसिकली डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ वेरी कंपेलिंग स्टोरी एंड वेरी पावरफुल कैरेक्टर्स and strong dialogues, or shed career light on very important issues, and resilience, you know, it's offering hope for resilience. And you know, definitely this is one of the dramas, my personal favorite, and I would like you guys to watch it and decide on your own कि आप लोगों को कैसा लगा. So for me, चूँकि ज़्यादा तो देखा ही नहीं है, तो उदाड़ी के लिए I would rate it 10 on 10. और अमेजिंग जॉब गाइस, अमेजिंग जॉब. ऐसा जिन्होंने भी बनाया है, ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता अभी किन्होंने बनाया है, वो लिखना भूल गई मैं, लेकिन जिन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया है. कीप डूइंग इट. एंड आई थिंक इस तरह के मोर ड्रामास हमारे पास आने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें लैक कर रही हैं कि यू नो लोग ऐसे ड्रामे बना नहीं रहे, वॉच नहीं कर रहे हैं. टिपिकल सास बहू के ड्रामे, टिपिकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले ड्रामे आ रहे हैं, जो कि मुझे तो पसंद नहीं है. और डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आपको वर्स्ट ड्रामास भी बताने वाले हैं कि जो आजकल वर्स्ट ड्रामा चल रहे हैं. और तो देयर इज़ वन मोर ड्रामा एक्चुअली लेफ्ट, जो कि मैं और ज़ियाद जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं. उसके बाद हम लोग ये वाली एपिसोड आई थिंक एंड करेंगे, और उससे पहले हम लोग जो है अपना ट्रैक चलाएंगे, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि हम लोग कौन सा ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है. Okay, so done? Ready? Let's do it. समझ तो आ गई होगी आपको. Sad is very excited for this drama. For what reason? I will tell you later. Ziad actually sings really nice. Ziad, over to you. Okay, sorry about that. Ziad, sing it, yaar. तारे हुआ यार, आपका अंतरा बड़ा अच्छा है. अंतरा पंतरा मिंतरा सब कुछ अच्छा है.
इश्क जो तारी हुआ. ओके जी, यही मैं स्टॉप करते हैं क्योंकि हम लोग ये पूरा गाना गा जाएंगे, हमें बहुत पसंद है. ओके जी, तो ये ड्रामे के लिए बिफोर वी स्टार्ट बहुत सारी तालियां. This was one of the blockbuster, one of the hits of Pakistani drama industry. This drama was by ARY Digital. One of my favorite actors and one of Zia's favorite actors. Actually, the whole cast was amazing. Actually, I also have a favorite actor too in this. Ziad की favorite actress इसमें है none other than the beautiful, the gorgeous Aiza Khan. Didn't I also say I have a favorite actor in this too? Who's that? I thought you just It was Hamza Ali Abbasi Hamza Ali as Shahram. Shahram. Then my favorite Savera Nadeem जी. Savera Nadeem जी आपके लिए huge fan man. अगर आप मुझे कहीं देख लें, मुझे आप मेरा पॉडकास्ट गलती से अगर स्क्रीन पे चलता हुआ कहीं नजर आ जाए, स्पीक मी वाला, तो प्लीज मैम, आई लव योर एक्टिंग. यू आर सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस. यू नो, आई मीन, मैं एक और भी इंसिडेंट मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी और मेरे मामू जो हैं वो ही एक्चुअली पास्ट अवे. यू नो, उनको कुछ साल हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें. उनके साथ मैं PTV अवार्ड्स में गई थी एंड आई वाज जस्ट अ किड एंड आई रिमेंबर कि मैं PTV के अवार्ड्स हो रहे थे और मैं पता नहीं कौन सी जगह थी, मैं बैठी हुई थी एंड सवेरा मैम शी एक्चुअली वॉकड इन एंड उस टाइम पे वो यंग थी, मैं बच्ची थी, वो यंग थी बिल्कुल. शी मस्ट बी लाइक इन हर 20s और समथिंग. 20s. एंड मैं ऐसे देख रही हूँ टॉल और इतनी यू नो प्यारी डॉल टाइप की, यू नो, सवेरा नदीम. एंड मैम आप कमाल है मैम, आपके लिए आपके जैसा कोई नहीं है मैम. Outstanding. Probably clapping my paper. And wish you all the best ma'am and we would like to see you in more dramas. Please करती रहिए जो आप करती हैं, जो आपकी natural acting है वो ही कमाल है. Although I really मुझे overall बिस्मिल ड्रामा पसंद नहीं है, लेकिन बिस्मिल ड्रामा I only watched because of you, because you were in it. और आपकी एक्टिंग और नोमान अजाज साहब की एक्टिंग was outclass, outstanding. Loved it because of you. Otherwise, Bismil is not one of my favorite dramas. The storyline, I don't like it. But just because of you both, we really liked it. और आप लोग दोनों की वजह से ही वो ड्रामा चला actually. Yeah. Also, like I also liked Savera Nadeem's acting and Jaane Jahan as well. जाने जहाँ. और इसमें भी नूरुल हसन साहब हैं. इसमें जो विलन को जो कैरेक्टर किया है और जो बहुत ही उभर के सामने जिनकी एक्टिंग स्किल्स हमारे सामने आई हैं, दैट वाज हारिस वहीद भाई. कमाल कर दिया भाई आपने. हारिस जी जबरदस्त. कैसे लगे थे आपको हारिस की एक्टिंग? हारिस वहीद की जो बिगड़ा हुआ स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है, मतलब क्या एक्टिंग की है आपने सर. मान गए आपको, आपकी वजह से ड्रामा चल गया सर. और फिर आयज़ा खान जिस ड्रामे में हो वो ड्रामा ना चले तो ऐसा तो हो नहीं सकता. ऑब्वियसली उनकी ब्यूटी एंड फिर उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग. इसमें हालांकि उन्होंने इतना मेकअप ही नहीं किया हुआ, बट शी लुक रियली नाइस. और ज़ियाद तो मतलब फ़ैन ही हो गए थे उनके. ज़ियाद ने बोला कि बस अभी में जो बड़े हो के ऐसी लड़की से शादी करनी है, आयज़ा खान जैसी. That's not what I said. ओके ज़ियाद, आई एम जस्ट जोकिंग. एक तो ज़ियाद बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं. ज़ियाद रिलैक्स, चिल. No, I'm being a chill guy. बट डोंट यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू आयज़ा खान? मैम आयज़ा, अगर आप ये पॉडकास्ट गलती से कहीं देख लें किसी भी मैकडोनल्ड्स में, KFC में चलता हुआ, तो ज़ियाद आपके लिए कुछ कहना चाहता है. Go ahead, Ziad. Aiza Khan is listening to you now. जल्दी बोलिए ज़ियाद. You're good at acting. हैं? That's it? You're a very good actor, very talented. What else यार? You were saying something else too, कि आपने बोला कि मुझे आयज़ा खान की ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, जैसे वो ड्रेसिंग करती हैं. और बिफोर आई मूव ऑन टू जाने जहाँ, हम लोगों ने बहुत ही पिछले दिनों एक बहुत ही कंट्रोवर्सी देखी. एक क्लिप चल रहा था कि दे वर इन UK along with two of the other really good actresses of Pakistan industry. One was कुबरा खान एंड सारा खान. और उसमें यही कंट्रोवर्सी चल रही थी कि
आयज़ा खान जो है वो क्वीन बनने की कोशिश कर रही हैं और यू नो शी इज़ बीन क्वीन ऑफ द इंडस्ट्री और शी वाज वेरी एरोगेंट और वो इग्नोर करके और अपनी अलग मस्जिद बना के और उधर कर रही थी यूके में. लेकिन टू बी ऑनेस्ट आयज़ा हम लोगों ने तो यकीन नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया जो हर चीज़ दिखाता है और मैं आप लोगों से भी ये रिकमेंड करूँगी आप लोगों से भी ये रिकमेंड करूँगी कि मीडिया हर चीज़ सही नहीं दिखाता है. तो डू नॉट गो फॉर द मीडिया क्लिपिंग कि ये हो गया वो हो गया. हमें नहीं पता बिहाइंड द स्टोरी या बिहाइंड द क्लोज डोर क्या था, बट डेफिनेटली वी डिडंट लाइक इट बिकॉज आयज़ा इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट एंड हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और एक्टिव भी रहती हैं अपने इंस्टा पे हर चीज़ पे और माशाल्लाह शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फैमिली एज वेल. तो वी रियली डोंट वांट कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हमारे और हमारा दिल ख़राब हो कि जी आयज़ा खान इस तरह से किया और फिर हम हो जाए. तो शुरू में हमें भी लगा यार आयज़ा खान इस तरह से क्यों करी है, लेकिन मैम हमने ऐसा कुछ नहीं बिलीव किया और वी रियली डोंट वांट कि आपका ऐसा इंप्रेशन कुछ है और अगर कुछ है भी तो वी रियली डोंट वांट कि आप इस तरह से सामने आएँ या ऐसा कुछ हो क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो यू. काफ़ी सारे लोग जो हैं आपको आइडलाइज़ करते हैं और वी रियली डोंट वांट कि उनके ऊपर बुरा इफेक्ट पड़े कि जी आयज़ा खान तो ऐसी हैं. तो और दूसरा ये कंट्रोवर्सी जो बनाने वाले जो रेटिंग के लिए करते हैं प्लीज़ डोंट डू दैट. यू नो आई मीन क्या स्टोरी थी उसके पीछे, क्या आप लोगों ने क्लिपिंग कैच की, क्या हुआ ये वो, जी हाथ मिलाया गले नहीं मिले ये वो, हमें नहीं पता. लेकिन डेफिनेटली ऑल थ्री ऑफ देम आर लाइक जिसको हमारे जो इंडस्ट्री की जो क्रीम थी आयज़ा, सारा खान और कुबरा और ये मतलब अमेजिंग. ये लोग यूके गए थे किसी इवेंट के लिए और वहाँ पे ये कुछ हुआ था, मुझे नहीं पता. लेकिन आयज़ा खान आप हमेशा हमारी फेवरेट हैं और हमेशा वी लुक फॉरवर्ड. आपका एक नया ड्रामा भी आने वाला है विद फिरोज़ खान और वेट कर रहे हैं हम लोग कब आएगा कब देखेंगे और आई एम श्योर वो भी एक बहुत ही हिट होने वाला है ड्रामा. तो अब हम बड़बड़ाना कम कर अब बस बड़बड़ाना ख़त्म करते हैं और ज़ियाद बेताब हो रहे हैं स्टोरी बताने के लिए. तो ज़ियाद गो हेड, क्या है स्टोरी बताएगा हमें अभी ताज़ी ताज़ी. Okay, anywho, like basically, first of all, this drama revolves around like themes of love, jealousy, बढ़ते रहे आप. spirituality, and rivalry, and then the story literally focuses on Shehram, played by Hamza Ali Abbasi, of course, in which he like faces Saveera Nadeem is the stepmother. in which he faces immense pressure from his father to take over the family business since his father died in the drama. Who's the father? That's Asif Razamir. Yeah. Yes. And basically, like, his journey is marked by his struggle to maintain his morals while dealing with the demands placed upon him. And then Manur, played by Isaac Khan, basically is this innocent and sweet love interest and is also Shahram's central figure in his life, in which he also provides love and emotional support to him in difficult situations. माशाल्लाह ज़ियाद आपने बड़ी अच्छी रीड करी, मज़ा आ गया. ज़ियाद ड्रामे को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए जी. स्टोरी हमारे पास ज़ियाद ने बिल्कुल सही बताया, ज़ियाद ने अपने तरीके से बता दिया. मैं थोड़ा आसान लफ्ज़ों में आपको बता देती हूँ. बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, मज़ा आ रहा है. Why तो did जनाब he put background music for the other dramas? because this is my favorite drama, one of the favorite drama. It's Why okay. Why did you do it for the others? It's okay ज़ियाद, आपको जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात I'm नहीं. not jealous. That's not. तो जनाब बिल्कुल सही ज़ियाद ने बताया कि ड्रामा स्टार्ट होता है. स्टेप मदर है सवेरा नदीम और इसमें मरियम नफीस की एक्टिंग बहुत अच्छी है जो कि शुरू में बड़ी ग्रीडी होती है लेकिन बाद में जो है उनको अकल आ जाती है और वो सही हो जाती हैं और शी इज़ एक्सपेक्टिंग. सो कॉन्ग्रेचुलेशन मरियम नफीस और वी विश ऑल द बेस्ट और विश यू हैप्पी हेल्दी बेबी. बहुत बहुत मुबारक हो आपको एडवांस. और अच्छी एक्ट्रेस है मरियम नफीस भी, शी इज़ नॉट बैड, आई लाइक हर. तो स्टोरी यही है जनाब कि जी वो स्टेप मदर हैं और उनके दो अपने बेटे हैं जो कि रज़ा तालिश हैं और हारिस वहीद हैं और शहराम एज ऑलवेज जो औलाद में जेलसी होती है बीइंग अ स्टेप मदर वो सारी है. और Basically, ऑलवेज there are three brothers. I 3 ब्रदर्स हैं लेकिन स्टेप ब्रदर तो ये हैं, वो तो दोनों सगे ब्रदर हैं, वो ब्लड रिलेशन है उन दोनों का. और हमेशा सवेरा नदीम wants the bad things happen to शहराम. शी इज़ ऑलवेज जेलस फ्रॉम शहराम. Because of like. लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट दिखाया कि शहराम कितने कूल काम कलेक्टिव हैं और किस तरह से वो रिलेशन को निभाते हैं और क्या क्या नहीं सवेरा नदीम करती हैं टू रूइन हिज रिलेशनशिप, टू रूइन हिज लव लाइफ, एवरीथिंग. आयज़ा खान को वो पसंद करते हैं, ही फॉल्स इन लव विद आयज़ा खान. एंड देन एंट्री होती है इमाद अरफानी की. इमाद अरफानी तो उन्होंने अब बहुत अच्छे ड्रामे करे हैं. एक्चुअली ही वॉज रियली गुड इन शीख एज वेल और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, वेरी नेचुरल, गुड लुकिंग भी हैं. तो और क्या चाहिए, लुक्स चाहिए, एक्टिंग स्किल्स चाहिए, एंड दैट्स इट. और फिर आगे क्या होता है ज़ियाद बताइए. और इसमें हारिस वहीद साहब को एक मैरिड औरत पसंद आ जाती है जिनका नाम है नवल सईद
उनके लुक्स के ऊपर वो मर And जाते हैं. basically, he was originally gonna marry somebody else, but he didn't want to marry them, but he married them anyway, and then basically cheated on her. I think And basically I'm he sorry, Saira Asghar या Sira Asghar if I'm pronouncing your name wrong, but she is amazing. मुझे बहुत पसंद है, मेरी पर्सनल फेवरेट है Sira Asghar और राबिया कुलसूम दोनों. I think underrated actresses हैं दोनों. They should get more work और उनको थोड़ा और ज़्यादा फ्रेम में आना चाहिए क्योंकि दोनों कमाल के एक्ट्रेसेस हैं. अदर देन एक्ट्रेसेस होने के साथ डांसर्स भी दोनों बहुत अच्छी हैं. तो मेरे ख्याल से उन दोनों को और चांस मिलना चाहिए टू शो उनकी एक्टिंग स्किल्स क्योंकि दोनों बहुत अच्छी हैं. तो हारिस वहीद को बेसिकली फैमिली में ही दे वांट के जी उनके ही अपने जो हैं कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके साथ ही शादी हो जाए और हारिस वहीद को ये मैरिड नवल सईद पसंद आती हैं. ही फॉल्स फॉल्स फॉर दैट मैरिड वुमेन नवल सईद और फिर उनके साथ उनकी शादी उनके हस्बैंड को भी मरवा देते हैं वो और You need to pause it, उनके or he can get off of it. उनके हस्बैंड को भी वो मरवा देते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है आपस में और एंड में जो है नवल सईद रिवेंज लेने के लिए क्योंकि उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड को उन्होंने ही किल किया है तो वो जो है क्या कहते हैं उनको एंड में मरवा देती हैं शादी करके उनको मरवाती हैं. और फॉर आयज़ा का भी बताया कि फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतने ज़्यादा उनके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. हाउ दे मूव फ्रॉम विलेज लेकिन शी इज़ वेरी आउट स्पोकन, वेरी आउट गोइंग, शी इज़ वेरी बोल्ड, ब्रेव, अपने लिए स्टैंड लेती है हर चीज़ के लिए. तो उस पे She उस also has like a school, right? स्कूल भी होता है उसका. शी इज़ अ टीचर और फिर शहराम कैसे उनके लिए स्कूल ओपन करते हैं He was उनसे. supporting. ही इज़ वेरी सपोर्टिंग. दैन इमाद इरफानी पिक्चर में आते हैं ये सारी चीज़ें हैं. तो बेसिकली द प्लॉट जो है इसमें इट्स सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या है, अबाउट द टेल ऑफ लव, फैमिली ड्रामा क्या होता है. अगर आपको इस तरह का कुछ देखना है तो दैट इज़ बेसिकली जाने जहाँ. एपिसोड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हैं. ARY से ये ड्रामा आया था और वेरी इंटरेस्टिंग था. और कुछ बताइए हमें, आपका फेवरेट सीन कौन सा है जाने जहाँ में? The scene I remember, but it's not really my favorite, is basically Hamza meeting Aiza, basically Shahram meeting Manur. तो आप क्यों हंस रहे हैं? आप थोड़ी मिल रहे हैं आयशा खान से. आप हंस क्यों रहे हैं? What? शहराम मीटिंग. I was trying to like Ziad, you can say whatever you want to say to Aiza Khan. It's okay. I'm sure Aiza Khan will love it. She'll be like, wow. आयज़ा खान अब जब कभी भी US से आई है तो ज़ियाद आपको रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पे आके और ज़ियाद ही आपके सारा टेक ओवर लेंगे, आपके खाने पीने का और आपके रहने वहने का इंतज़ाम करेंगे. तो आप जब भी आएँ दानिश तैमूर से परमिशन लेके जब भी आना चाहें तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम क्योंकि ज़ियाद इज़ हियर टू डू एवरीथिंग फॉर यू. राइट ज़ियाद? ज़ियाद आपकी ह्यूज फैन है. मैं बता रही हूँ कैमरे के सामने ही इज़ कैमरा शाय राइट नाउ. ही इज़ नॉट ओपन नहीं हो रहे, खुलदे पे नहीं ने थोड़े मानदने तो चाबी कहीं घूम गई है इधर. लेकिन यही है कि ज़्यादा को आयज़ा खान बहुत पसंद है. जाने जहाँ के बारे में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन आई थिंक वी शुड स्टॉप राइट हियर एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो इन द न्यू एपिसोड क्योंकि हमारा गला सूख गया है, सब कुछ हमारा सूख गया है और हमारा गला दुख रहा है. तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाने जहाँ को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लग रहा है हम थोड़ी सी स्टोरी भूल गए हैं तो हमें थोड़ा जाने जहाँ के ऊपर और थोड़ी लाइट डालनी है. राइट? तो हम लोग उसको थोड़ा प्रिपेयर करके नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे आपके सामने. टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द notification bell. Where is it in the corner? Yes. It's next to the subscribe button, I believe. प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा और किसी ड्रामे के बारे में डिस्कशन करना चाहें तो वी कैन डिस्कस अबाउट इट. और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, खुदा के लिए सब्सक्राइब कीजिए, आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और इसी तरह से लोगों को इंकरेजमेंट मिलती है. तो प्लीज़ यही इस तरह से नहीं करिए, प्लीज़ आप लोग आगे देखिए, फैलाइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. किसी को भी पसंद आ सकती है. सैयद नूर हमारे वीडियो देख के हमें रीच आउट कर सकते हैं कि जी कौन है ये दोनों, बुलाइए इनको, पाकिस्तान इंडस्ट्री में बुलाइए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल. तो हल्का मत लीजिए हमें हल्का मत लीजिए. आप लोग लगा रहे यार आगे बैठ गए हैं बस ये करके. देखिए जी किसी भी चीज़ के बारे में सबसे पहले तो कैमरे के सामने आके बैठना और फिर कैमरे के आगे सामने बोलना कंटिन्यूसली, जबड़ा हिला हिला के बोलना. दिस वेरी वेरी इट्स नॉट ईजी. ठीक है? और तो
इसीलिए आप लोग प्लीज़ हमें सराहिए, पसंद कीजिए और बताइए, फीडबैक दीजिए, दिल में मत रखिए और हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसी लगी वाली एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मज़ीद ड्रामों के साथ और 5-6 वर्स ड्रामा जो हैं, जो कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे देखना, उसके साथ हाजिर होंगे आपके साथ। ज़्याद को तो बहुत नींद आ रही है क्योंकि ज़्यादा लग रहा है सोए नहीं है। What do तो you mean? या यू लाइक दिस, सो The school assignments are just keeping me awake all night. आई नो, बट स्टिल at night you can sleep, right? I know I do. It's just that I have some other school stuff coming up, so it's kind of bothering me and not. Okay, Ziad, it's Yeah. okay. Relax and chill. I know I'm trying. So, it's okay, Ziad, relax. I know. कोई बात नहीं, it's okay. Ziad भी थोड़ा ड्रामा करने का पसंद करते हैं. Alright. I mean, it's alright. Ziad को ड्रामा बहुत पसंद है, डोडी खान बनने का शौक है. जी, YouTube फैमिली, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा. Stay tuned. एंड दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे. पूरी 1 घंटे की एपिसोड हमने बना ली, पता नहीं कैसे बनाई लेकिन बना ली. सो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द सेकंड एपिसोड. अगर हमसे कोई गलती हो गई हो कास्ट के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, हमने किसी का नाम भुला दिया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा. लेकिन ओवरऑल जितने भी ड्रामा रिकमेंड किए हैं, दोज आर वेरी नाइस, दोज आर वेरी हाईली रेटेड रिकमेंडेड ड्रामाज बाय मी एंड ज़ियाद. तो प्लीज़ टिल देन, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, शब बखैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग ऑफ, मी हबीबा, Me Zion. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जना. Speak Mix with Habiba and Zad.